तो भाइयों हमारे चैनल पे मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि हम ट्रैकिंग से रिलेटेड एक ऐसा कंटेंट ढूंढ के निकालें कि अगर कोई बंदा कोई पर्टिकुलर ट्रैक करना चाहता है तो बस वो इस चैनल पे आए और उसको हर कंटेंट यहाँ से मिल जाए। तो बेसिकली लाइक ट्रैकिंग की एनसाइक्लोपीडिया। अब हर ट्रैकर का एक सपना होता है एवरेस्ट बेस कैंप करने का। अगर आप ट्रैकिंग में हो, एवरेस्ट बेस कैंप आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी सोचा ही है। हमारे क्लब के अंदर, इंडियन ट्रैकर्स क्लब के अंदर वेरी रिसेंटली एक बंदा है जो एवरेस्ट बेस कैंप DIY करके आया है। तो इस समय हमारे साथ कॉल पे है मिहिर जायसवाल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। So basically I am from Ahmedabad, Gujarat and working in the Bangalore in a software engineer in Capgemini as a data engineer, as same as you. So सारी information people want कि how to go to cheapest way from the India to the base camp, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई कैन ओनली अप्रिशिएट कि मतलब अगर हम किसी कंपनी के साथ ही जाते हैं कैसी चैलेंजिंग ट्रैक पे, उसमें ही इतना सोच विचार करना पड़ता है, इतना मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। और आपने तो मतलब ये खुद ही करा है। मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन आपके अंदर कहाँ से आया? मतलब एवरी ईयर मेरा ऐसा था कि एक चीज हार्ड थिंग्स करना है, लाइक वेरी हार्ड विच इज यू नो कुछ मतलब तुमको करना पड़े इसके लिए। तो मैं लास्ट ईयर से कर रहा था एंड देन ये साल एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद। तो दैट वाज माय विश लिस्ट कि 2024 में एवरेस्ट बेस कैंप जाना है। तो फिर अक्टूबर में जाके ये सक्सीड हुआ। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई बिल्कुल नया बंदा देख रहा है तो व्हाट इज एवरेस्ट बेस कैंप या व्हाट इज EBC? EBC in the sense full form is Everest Base Camp. Mount Everest is one of the tallest and highest peak in the world, 8848 meter. It's situated in Nepal, so you have to go to Kathmandu and then Lukla and then Nepal. So EBC की ट्रैक कहाँ से शुरू होती है? There are two options: go by flight, go by road. If you go by flight, Lukla, you will land at Lukla and you will start your day. Lukla is one of the dangerous airport in the world. Very high altitude. Very वो है ना जो दो पहाड़ों के बीच में there is a runway. 200 रनवे होता है मीटर का, उसमें तुमको टेक ऑफ लैंड करना होता है। अगर गए तो पूरा खाई में। That's very dangerous. If you have by road, you needed 2 extra days, 2 or 3 extra days, depending on your stamina. So you start from the Saleri, Thamdanta and the Surke. And then Lukla will come in the 4th stage. Okay, so you start walking from Saleri. You have to take a jeep. The road is very, very rough and the drifting. I mean, very off-roading. First day you have to take a jeep. It will drop you at the second stop. The next day you have to start the trekking. Okay. 2 days you trekking and you reach the Lukla eventually. Okay. And then you start the actual trek जहाँ से सब लोग शुरू करते हैं. How was your overall experience? Like to sum it up. Experience is damn good. Like I did a preparation for 2 months and somehow I succeeded. When I feel मतलब मैं जब पहुंचा वहाँ पे, मतलब वो एहसास ही अलग था कि मतलब EBC पे मैं पहुंच गया। I mean, सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा। और I mean lifetime achievement moment I did. So yeah, obviously it's unique. How did it change you, like as a person? Do you feel different after coming back? वो EBC रूट है ना ट्रैकिंग, वो अपना मेंटल स्टेमिना प्लस फिजिकल स्टेमिना चेक करता है। तो जब मैं आया तब I literally changed. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया था। I mean, obviously it will increase your confidence level, how you take the decision, your different critical thinking skills. और आपके हिसाब से EBC करने का बेस्ट सीजन कौन सा है? मतलब I know it is open like 12 months, I think. No, is it open 12 months? No. Okay. No, not at all. There are 2 good window in the every year. One window opening March to April. The second window opening in the October, November. Okay, so basically ठंड और गर्मी के बीच के जो 2 मौसम आते हैं उसमें हम जा सकते हैं। Correct. The neutral point. In one of the treks I found a person जो EBC करके आया था, तो उसने मेरे को बोला था कि मतलब वहाँ पे पिज्जा वगैरह मिलता है और मोबाइल नेटवर्क पूरा चलता है और आई थिंक घोड़े पोर्टर वगैरह भी चलते हैं मतलब तुम्हें कैरी करने के लिए। इज इट ट्रू? पिज्जा इन दिस नॉट प्योर पिज्जा, बट तुमको हाँ सिमिलर क्रस्ट ऐसा मिलेगा। वो रेयर जगह पे मिलता है। वो मतलब लोकल जो लोग रहते हैं वो लोग बना के देंगे। द चीज विद दे पुट इज अ याक चीज, वेरी ऑर्गेनिक एंड वेरी ऑर्गेनिक पिज्जा। डिड यू ट्राई? हाँ हमने किया था, बिकॉज हम पक गए थे दाल भात खा के, क्योंकि नेपाल का स्टेपल फूड है दाल भात। और बात रही नेटवर्क की, तो नेटवर्क इज ओनली टिल लुकला, नामचे बाजार। नामचे बाजार इज द वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड विलेज। जो भी ट्रैकर मतलब ऑफिशियली प्रो और एक्सपर्ट चार करते वहां से स्टार्ट करते हैं।
अगर कुछ अच्छा। भी गया है मतलब गियर और ट्रैकिंग गियर, यू कैन बाय इट फ्रॉम दैट आल्सो. And the last Okay. ATM, only one ATM you will find there also. Since when you started like your fitness routine? Okay, so it's two way. Like if you are have gym person, if you go to regular gym, you can start preparation within 1 month. But if you don't Okay. go gym and without gym, you can start before 2 months or 1.5 months. Alright, so हमने थोड़े से बेसिक्स को कवर कर लिया. Let's now dive into the details. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके जर्नी मतलब फ्रॉम द डे यू लेफ्ट योर होम टू द डे यू रिटर्न बैक टू योर होम, कितने दिन थे? I returned on the day home at the Diwali, so total is 25 or 27 days around something. एंड फ्रॉम लुकला टू फ्रॉम योर ट्रैकिंग स्टार्ट पॉइंट टू ट्रैकिंग एंड पॉइंट, वो कितने दिन थे? Salary to salary, you can say 15 to 16 days. हाउ मच वाज द ट्रैकिंग डिस्टेंस? 161 go, that means 300 something, more than 300. 161 go. One Oh go. bhai. Yeah. Oh, that is crazy. That is crazy. Yeah, and it's totally a feeling. हाँ, Totally but that is also feeling. like this. Oh shit. हाँ, then तो you should With grade 15 it kg hard to backpack. extreme. Yeah. Oh shit. And what was your budget? Taking as a budget friendly, I want to plan my cheapest way or budget friendly. So I don't want to go to flight. So we prefer the by road. So my budget is like from Nepal to Nepal is the 430 to max 40. Okay. 40 INR. So you have to convert your currency in the Nepal once you cross the border in Nepal currency. 100 rupees is equal to 150 Nepali rupees. इंडिया से लेकर नेपाल आपने बॉर्डर कहाँ से क्रॉस किया था? My partner is from the Pune. So हम दोनों ने स्टार्ट Okay. किया था पुणे से गोरखपुर. Now गोरखपुर से नजदीक बॉर्डर पड़ता है सनौली बॉर्डर. So we crossed the border Sanoli and we reached officially enter in the Nepal and then next day we reached the Kathmandu. तो सनौली से काठमांडू की आई थिंक रेगुलर बसेस वगैरह. वहाँ से मिल ही जाते Okay. मतलब क्रॉस कर. एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड इट इज अ वीजा ऑन अराइवल और वीजा फ्री फॉर अस. अपने इंडियन को वीजा एंट्री फ्री है, मतलब यू डोंट नीड एनी एप्लीकेशन और समथिंग, यू जस्ट नीड आधार कार्ड और या आइडेंटिटी कार्ड और योर पासपोर्ट. Okay. इज इट पॉसिबल टू एंटर विदाउट पासपोर्ट? या पॉसिबल. तुम अगर आधार कार्ड बोलोगे और तुम बोलोगे हिंदी में और थोड़ा मना लोगे तो वो मान जाएंगे. दे आर गुड पीपल. नेपाली इज गुड पीपल. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि लाइक वो ठप्पा लगाए पासपोर्ट पे. नहीं मतलब मेरा तो शौक था कि मैं ऑफिशियली थप्पा लगाऊं. ऑब्वियसली वो शौक होता अच्छा. है. आपकी आइटनरी कैसे रही थी? जैसे आपने मेरे को बताया कि आप काठमांडू पहुंच गए, फिर काठमांडू से जो आपका ट्रैक स्टार्ट वाला पॉइंट था, मतलब एक जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं अगर आप वो बताएं अपने. और पुणे से हम पूछे गोरखपुर से सनौली बॉर्डर क्रॉस किए, ऑफिशियली एंटर नेपाल में हुए. देन नेपाल से बस पकड़ी काठमांडू की. तो वो पूरा एक दिन लगता है. तो रात को हम काठमांडू पहुंचे. तो एवरी डे काठमांडू से जीप और बसेस चलती है सलरी तक. टिकट लेना पड़ेगा, एडवांस बुकिंग करवाना पड़ता है रात को. Okay. चाब हिल इज द प्लेस ऑफ दैट जीप और बसेस. ओनली वन प्लेस, चाब हिल, CHABHIL. तुमको पहले रजिस्टर करना होता है एंड देन मॉर्निंग यू हैव टू रीच 5 अर्ली इन द मॉर्निंग. तो काठमांडू से सलरी की जर्नी 12 से 13 घंटे है और सबसे फास्ट जीप ही पहुंचाती है. इफ यू गो इन बस इट विल टेक 20 to 30 hours. एंड चार्जेस कितने रहते हैं उसके अप्रोक्सीमेट? सो यूजुअली नॉर्मल प्राइस इज 2000 से 2500 के बीच में होते हैं. पर फेस्टिवल में बहुत छूट हो जाती है, 4000 से भी Okay. ऊपर हो जाते हैं पर पर्सन. यू हैव टू बी नेगोशिएट, अदरवाइज वो लोग लूटने ही बैठे लिटरली. दिस इज इंडियन करेंसी 2000. नहीं नेपाली. क्रॉस द नॉर्थ बॉर्डर, वहां से ही तुमको पैसे एक्सचेंज कराने हैं, सारे पैसे. मतलब अप टू बैक जर्नी. तो मेरा तो मानो 30,000 इंडियन रुपीस कन्वर्ट कराओ तुम लोग पहले. Okay. हमने इतना ही Okay. करा. 30,000 इज वेल इनफ. अगर बैकअप Okay. पड़ा तो हम ATM से निकाल देंगे. ऑब्वियसली ATM में Okay. टैक्स लगता है, 500 से 600 रुपए कटता है ट्रांजेक्शन. Hmm. बेटर टू तुमको अच्छा प्राइस मिलेगा बॉर्डर पे. और यू हैव टू टेक अ नेपाली सिम ऑल्सो बिकॉज इंडिया का सिम नहीं चलता. Obviously, हाँ, correct. वो सबके लिए कनेक्शन के लिए और जीप वालों को कांटेक्ट करने के लिए तुमको नेपाली सिम लेना पड़ेगा. उसमें भी स्कैम होता है उधर. सो मेक श्योर यू टेक अ नॉर्मल मतलब नेपाली सिम एंड देन डू टॉप अप रिचार्ज. जैसे पुराने कूपन होता था ना अपने 10 रुपए रिचार्ज वाले, स्क्रैच कूपन. हाँ वहाँ पे वो हाँ. मिलता है और टॉप अप रिचार्ज मिलता है. तो टेक डू दैट वन. तो लोग ठगने बैठते हैं कि हमको तुमको 5 दिन का इतना देंगे, 10 दिन का इतना जीबी देंगे. वो मत, उसमें मत पड़ना. तो देन वी रीच सिलेरी. उसके बाद ट्रैक शुरू हो गई.
then how many days ascent? तो वहां से अब रास्ता अप डाउन ही होगा, अप डाउन ही होगा। मतलब सैलरी से हम एक दिन जीप लिया, मतलब यू हैव टू टेक अ जीप, यू हैव टू सैलरी टू सुर के पहुंचना पड़ता है। तो एक दिन तो पूरा जीप भी निकलना पड़ता है, उसका भी 2400-2000 ही लगता है वो जीप का, नेपाली रुपीस। एंड देन फ्रॉम देयर यू स्टार्ट योर ट्रैकिंग पॉइंट सुर के और पैया। And how many days till EBC? So it's depends on how your body acclimatize well. So किसी लोगों की बॉडी एक्लेमेटाइज जल्दी होती है, किसी की नहीं होती। तो हमारे केस में क्या था कि हम दोस्तों थे इंडिया से, तो हमने ट्रैक किया हुआ था, तो हमको एक्सपीरियंस था इस चीजों का, तो हमारी बॉडी जल्दी एक्लेमेटाइज हो गई थी। प्लस हम बाय रोड आ रहे थे, तो हम को वो एडवांटेज हुआ था कि हम इजीली एक्लेमेटाइज हो रहे हैं। तो फ्लाइट आएंगे, फ्लाइट से तो उनको जल्दी एक्लेमेटाइज नहीं होता वो लोग। सो हम वेरी एक्लेमेटाइज हो गए थे। तो यूजुअली 2 दिन एक्लेमेटाइज देते हैं, नामचे बाजार एंड दिंगबोचे। तो हमने वो एलिमिनेट किया था क्योंकि हमारी बॉडी वेरी मतलब फुल रिकवर थी। तो हमने वो एलिमिनेट करके कंटिन्यूअसली डे टू डे हम हाइक करते रहे टिल डे 12 तक। आई गेस 12 और 13वें दिन हम लोग पहुंच गए। तो फ्रॉम सिलेरी टू EBC वाज 12 days बेस्ड ऑन लाइक एक्लेमेटाइजेशन एंड ऑल। तो लाइक अगर कोई नया बंदा इसको शुरू करता है EBC करने, तो आई थिंक उसको 1.5 महीने का बफर लेके चलना चाहिए, है ना? ये सेफर साइड, मतलब अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना आए, ऊपर जाके ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, इफ यू हैड सम ALS हिट यू, देन ओ माय गॉड विल सेव यू। मतलब वहाँ हेलीकॉप्टर होता है इमरजेंसी के लिए, पर उसका 2 लाख 3 लाख होता है, मतलब $1,500 से स्टार्ट होता है। वो भगवान को कृपा करो कि वो हो ना ऐसा। हम ऐसा ही प्रे कर रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि मेरी पार्टनर वो फीमेल थी, तो आई हैव टू टेक केयर द बैकअप कि अगर कुछ हुआ तो। एंड EBC in itself is like at 18,000 feet. वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। मतलब हमारी जो अगर हम इंडियन ट्रैक द हिमालयाज या इंडिया हाइक्स की बात करें, वो 15,000 फीट्स के ऊपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट ग्रेड कर देते हैं 14,000-15,000 पे। EBC द बेस कैंप इटसेल्फ इज 18,000। सो मेरे लिए तो बेस ही समिट था। मतलब हम गए थे बेस के आगे, ऑब्वियसली हम बेस के आगे गए थे, कैंप 1 तक हम गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम बचा था। तो जो लोग कैंप लगा थे ना प्रो ट्रैकर, मतलब चढ़ने के लिए समिट तक, हम वहां पे भी गए थे, मतलब देखने की मिलने की वो लोग कैसे होते हैं। आई मेट मतलब मीरमा शेरपा वो क्लाइंब 14 पीक्स, उसकी नेटफ्लिक्स पे एक नीरमा पुरजा उसका नाम है, तो मतलब 1-2 मिनट के लिए मिला था। मतलब वो बहुत उसकी टीम के साथ बहुत बिजी था एंड वी जस्ट सेड हाय हेलो। तो बॉस मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स पे, 14 पिक्स करके है। एंड देन उसको मिला तब, मतलब वो एक्सपीडिशन पे निकल रहे थे उसकी टीम के लेने, मतलब वो एक टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, उनको लेके। भाई यू मेट न्यूज़ फॉर वाओ यार, सच अ सेलिब्रिटी मोमेंट यार। अनफॉर्चुनेटली हमारे फोटो की बैटरी सब कुछ डाइट था, मतलब ड्रेन हो चुका था, ना फोटो लेने का चांस मिला। बट अच्छा पर्सन मिल गया, वो खुश है। इन पर्सन मीट इज अरे क्रेजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफिशियल पेपर्स, द परमिट्स। कितने परमिट्स लगते हैं, कहाँ से अप्लाई होते हैं, और इंडिया से भी लगता है या फिर सिर्फ नेपाल में लगते हैं? 3 महीने पहले नेपाल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि मैंडेटरी रूल्स कि इफ यू आर कमिंग फॉर द ट्रैकिंग यू शुड नीड अ गाइड, मतलब यू नीड अ पोर्टर एंड गाइड, विदाउट पोर्टर गाइड यू कांट एंटर इन द रीजन। पर ऑफिशियली फिर मैं नेपाल की वेबसाइट चेक करता रहता था उसका गवर्नमेंट की, तो फिर देखा कि जब मेरा ट्रैक स्टार्ट होने का तो उसके 1 मंथ पहले आया कि यू कैन डू अ विदाउट गाइड। मैंने बोला अब ये मौके पे छक्का हो गया, चलो अब तो भगवान भी चाह रहा है। पहले 3 परमिट होते थे, पर अभी उन्होंने रिड्यूस कर दिया, 2 परमिट चाहिए तुमको। एक ट्रैक कार्ड चाहिए नेपाल रीजन का, वो खुम्बू रीजन बोलते हैं, वो पूरा एवरेस्ट को। एंड देन यू नीड अ परमिशन फॉर द सागरमाथा नेशनल पार्क, जो वो एवरेस्ट रीजन पड़ता है वो सागरमाथा नेशनल पार्क में पड़ता है, तो उनका भी परमिट। तो पहले ऑनलाइन कर सकते थे, पर अभी क्या हो गया कि यू कैन गो देयर, ऑन स्पॉट मिल जाएगा, और तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यू नीड अ पासपोर्ट, योर आइडेंटिटी प्रूफ, एवरीथिंग, एंड देन तुमको वो वेरिफिकेशन के बाद मिल जाता है। टोटल कॉस्ट रहता है 3,500 नेपाली रुपीस, दोनों को मिला के 3,500। ओके, 3,500 नेपाली करेंसी। ओके रुपीस, या
उसके मिलने के बाद यू विल मतलब थोड़ा वेरिफिकेशन होगा, फोटो लेंगे आपकी, वहाँ पे नाम सब कुछ लिखेंगे और आपकी एंट्री होगी, और वो आपको पूछेंगे कितने दिन में आप वापिस आओगे। इफ यू डोंट कम मतलब अराउंड 1 or 2 मतलब अप्रोक्सीमेट, तो वो लोग फिर उनका सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी काउंट मैच करना पड़ता है, कितने इन हुए कितने आउट हुए। अच्छा, तो अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि पासपोर्ट, आधार कार्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू कैरी। पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, पहले था, अभी बट मेक श्योर कि यू हैव 1 or 2। Also 3500 was the total cost of all the permits, right? Yeah. Okay, cool. And वो दोनों के दोनों वहीं जाके we can मिल जाते। And how did you navigate? मतलब ट्रेल पे लोग ज्यादा थे या फिर ट्रेल मार्क्ड थी, एरोज थे, क्या था? Yeah, in seasonal you will find the मतलब lot of people there, बट उसके 2-3 रास्ते भी कन्वर्ट करेंगे तो तुम भूल ही जाओगे कहाँ से कहाँ जाना है। तो हमने क्या किया था, बेस्ड पे map.me करके एक एप्लीकेशन आता है, उसमें जब तुम काठमांडू मतलब सलेरी पहुंच जाओ और काठमांडू पहुंचते हो, यू हैव टू डाउनलोड ऑफलाइन मैप। मतलब मैं अपने टारगेट बना देता, आज यहाँ से निकलना है तो मतलब आज का टारगेट ये होगा और शाम तक हम लोग 5-6 बजे तक ये कंक्लूड कर देंगे, हम पहुंच जाएंगे, और एल्स वी कैन मूव फर्दर पुश, देन आगे पुश कर सकते। तो बेस्ट थिंग इज मैप.me डाउनलोड करो, उसको यूज करो। गूगल मैप चलता नहीं है काठमांडू के आगे, और मैं एप्पल मैप मतलब एप्पल मैप थोड़ा अच्छा चलता है गूगल मैप से। इज इट पेड और फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू जस्ट मेक अ लॉगिन विद योर जिम एंड उसके अंदर लाइक जैसे कोई नया बंदा जाता है तो उसके अंदर मार्किंग्स हैं कि यहाँ पर आप कैंप कर सकते हैं या फिर वहां जाके ही यू हैव टू सी। तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि टेंट का कॉन्सेप्ट है, पर यू कांट स्टे इन अ टेंट इन -20 डिग्री, राइट? तो वहां पे टी हाउस का कॉन्सेप्ट है। टी हाउस ऐसे होते हैं कि लकड़ी के मकान होते हैं छोटे छोटे, और यू हैव टू स्लीप और ईट विथ अ लोकल पीपल। तो वहाँ के जो लोकल होते हैं उन्होंने टी हाउस बनाया होता है, तुम्हारा खाने पीने और रहने का उसमें ही होता है। ऑब्वियसली दे चार्ज अ लॉट, जैसे तुम ऊपर जाओगे उसका पैसा बढ़ता जाएगा। लास्ट दिन पे मैंने चाय का 900 रुपए दिया था कुछ। हाँ, पर गरम कुछ पेट में डालने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो चाहिए। और वन टिप्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज इन खाने में, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि बॉडी को तुमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए तुमको खाना पड़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो विल हैव एएमएस और कुछ लूज मोशन होंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा। पेट से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो you have to keep your stomach happy. सपोज करो मैं एकदम बिगिनर हूँ, ठीक है, एंड आई एम यूजिंग दिस map.me, ठीक है, तो हाउ विल आई नो कि मेरा आज का टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? मतलब डू आई हैव सम मार्कर्स की यहाँ तक जा सकते हो, या मेरे को बस चलते रहना पड़ेगा एंड देन रास्ते में मुझे टी हाउस दिखे तो मैं रुक जाऊं? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो, रास्ते में हर जगह नहीं होता टी हाउस, नहीं तो मिलेगा भी नहीं। रात में तुम घूम जाओ ऐसा। मतलब हम रिसर्च, आई सेड कि मैंने रिसर्च किया था 3 मंथ से मैं रिसर्च करता आ रहा था। तो यूजुअली जो भी ट्रैकिंग कंपनी स्टे रहती है ऑफिशियली, तो मैं उस हिसाब से मान के चला था कि आज का दिन यहाँ होगा, थुकला में होगा, और आगे आज का दिन पिंगजोबे, देंगबोची, मतलब मैं लिख के गया था और नोट डाउन करके गया था। फिर मैं अपने हिसाब से, स्टेमिना के हिसाब से देख रहा था कि आज हो पाएगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं कहाँ रुकूंगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो आगे कहाँ रुकूंगा। तो आगे पीछे का मैं सोच के निकल रहा था जब मैं डे स्टार्ट कर रहा था कि आज का स्टे ये होगा, अगर इससे ज्यादा किया तो कहाँ रुकूंगा, और इससे कम किया तो कहाँ रुकूंगा। जो कंपनीज हैं उनके जो आइटनरीज में ऑलरेडी चीजें मेंशन्ड होती हैं, तो उसका काफी पॉइंट्स उससे काफी हेल्पफुल मिल गए थे कि कहाँ रुकना है। मैंने भी ब्लॉग बनाया है, इफ यू गाइस वांट टू गो, मेंशन माय लिंक डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट, और पूरी उसमें डिटेल आइटनरी है। जैसे 12 दिन आप कह रहे हो ऊपर गई था, तो आप खाना कितना लेके गए थे भाई? कोका कोला यहाँ 20 की मिलती है, वहाँ के 120 की मिलेंगी, क्योंकि वहाँ सब सारा इंपोर्ट करते हैं, इम्पोर्टेड है, करेक्ट। वहाँ कुछ नहीं बनता। हमारा ये था कि हम जो भी शॉपिंग और माउंटेन गियर और कपड़े लेके जा रहे हैं वो इंडिया से लेके जाए, ना कि हम काठमांडू पे डिपेंड रहे। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ छूट जाता है तो वो काठमांडू में थामेल बाजार है, ट्रैकिंग का पूरा सामान मिलता है उधर। पर हम पूरा प्रिपरेशन के साथ गए थे, पूरा ट्रैकिंग पोर्ट्स और क्रैम्पॉन सब कुछ लेके गए थे। मेरा तो क्या है कि यू नीड अ चॉकलेट्स विद ड्राई फ्रूट्स, तो बेस्ट इज द स्नीकर। मेरे को स्नीकर अच्छा लगता है पीनट्स पे, तो मैंने बहुत सारे स्नीकर्स ले ली थी, प्लस पूरा ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट, आलमंड, कैश्यू, पिस्ताशियो और वॉलनट्स पूरा मिक्स करके उसका एक थैली ले लो। एंड देन सिंग चने आते हैं विच इज वेरी हेल्दी, तो सिंग चने ले लिए थे, प्लस
आपको थोड़ा तीखा भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा स्वीट स्वीट हो रहा है जर्नी में, कुछ थोड़ा नमकीन भी चाहिए। तो कुरकुरे अच्छे काम करता है, चिप्स अच्छी काम करती है, बनाना चिप्स, कुरकुरे। तो फूड में बेसिकली आपने कुछ हार्ड फूड कैरी नहीं करा था, जैसे जैसे आप दाल भात कह रहे थे, तो आप वो वहीं से खरीद के खा रहे थे? हाँ, वो सब वहीं से मिलेगा, लोकल टी हाउस वाले ही देंगे तुमको, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड होता है जो पानी में मिला के पीते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मैं 10 पैकेज ले गया था उसके, डिफरेंट फ्लेवर्स के। एवरी डे जस्ट उसको मिलाओ पानी में और पी लो, मतलब वो अच्छा स्टेमिना रखेगा आपकी, मतलब हाइड्रेशन रखता है। पानी कैसे मैनेज किया? पानी भी आई थिंक खरीदा ही होगा फिर तो। हमारा ऐसा था कि हम लोग फिल्टर टैबलेट लेके गए थे जो पानी में मिला के उसको फिल्टर आउट करता है, पर मेरे पार्टनर को वो पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ही कड़वा पानी कर देता है लिटरली। मतलब तुम अगर एक फिल्टर भी एक बोतल में डालते हो, हाँ, तो फिर मैंने सॉल्यूशन ढूंढा कि जो झरने थे, मतलब वाटरफॉल, फ्रेश वाटरफॉल, इस पे से मैं टाइम टू टाइम पानी फिल अप करता जा रहा था। अच्छा, वहाँ मिलते हैं वाटर सोर्सेज। पर मेक श्योर कि जब टी हाउस से निकलो आप 2 और 3 बोतल फिल अप कर लो, वो भी गर्म पानी का, क्योंकि वहाँ ठंडा पानी मतलब पूरा जमा हुए होता है। टी हाउस वाले चार्ज करते हैं क्या वो पानी रिफिल करवाने? दे चार्ज 100 रुपीज पर बॉटल। तो या तो तुम कुछ बोलो कि हम लोग डिनर लंच किया तो भाई साहब थोड़ा फ्री में दे दो, या मतलब कुछ नेगोशिएशन करके उस पटाओ थोड़ा भैया भैया करके। हाँ, थोड़ा नेपाली 2-3 वर्ड सीख लो तो वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाएंगे। हमने वही किया था, बिकॉज मेरी जो पार्टनर थी और मैं, वी आर वेरी गुड इन नेगोशिएशन। और जो आपको प्राइस बोलेंगे रहने का, खाने का, पीने का, वाईफाई का और नहाने का, सारे चार्ज देखा तो वो नेगोशिएबल है, यू कैन डू नेगोशिएबल। पर 500 रुपए वो बोलते हैं तो दे कैन डू इट 300 और 400, पर आपको करना आना चाहिए। आप स्लीपिंग बैग वगैरह कुछ ले गए थे क्या, या अगेन वही टी हाउस पे जो वहाँ पे ब्लैंकेट मिलेगा और यू कैन आस्क फॉर एक्स्ट्रा 200-300, पर इतनी जरूरत नहीं है, वहाँ के वो बहुत थिक ही जाड़े जाड़े होते हैं। पर अगर आप मार्च अप्रैल में जा रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि यू गो विद स्लीपिंग बैग, क्योंकि मार्च में बहुत फ्रीजिंग होता है। तो यू शुड हैव योर ओन स्लीपिंग बैग प्लस द कंबल जो टी हाउस में मिलता है। पर मेक श्योर यू हैव गुड क्वालिटी क्लॉथ, शूज, क्लॉथ मतलब आई हैड अ नॉर्थ फेस जैकेट एंड नॉर्थ फेस का फ्लीस था मेरे पास। मतलब नॉर्थ फेस जो रहता है एक्सपेंसिव होते थे, बट इफ यू आर बिगिनर गो टू डिकैथलॉन, पिक अप एनी, वहां से सब कुछ मिल जाएगा। अपने पास अच्छे शूज होने चाहिए, डोंट मेक हैवी बूट जो आते हैं ना, जो डिकैथलॉन में बड़े वाले होते हैं, आई गेस उसका नाम क्या था, वो ऑरेंज कलर के, डोंट टेक दैट वन। वो जो 7000 वाले हैं, जो 7000 वाले आते हैं, यस दैट वन। हाँ, अच्छा, ओके। उसमें क्या होता है कि वजन ज्यादा हो जाता है, तुम्हारा पैर इतना, मतलब हमको इजीली मूव करना होता है ऊपर और नीचे, तो मेक श्योर कि यू हैव ट्रेल रनर शूज विद ब्रीथेबल और वेरी लाइट वेट बट द वाटर प्रूफ ऑल्सो। मेरे पास कौन सा है, एडिडास गोरेक्स शिफ्ट 3 और विच इज वेरी एक्सपेंसिव, 12,000 के शूज, मतलब डिस्काउंट में मिले थे मेरे को। सो मेक श्योर यू हैव वेरी गुड शूज। ऑल्सो इफ आई सजेस्ट, होका के अच्छे आते हैं, देयर इज वन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड रोड 3 एरो ROAD 3। I mentioned down all in my blogs which one is good shoes, you can go there, but make sure is not heavy weighted। और उसको पहली बार मत पहनना, गलती से भी पहली बार मत पहनना, मतलब 2-3 बार यूज किया होना चाहिए, अदरवाइज आपको वो ग्लिचेस आ जाएंगे पैर पे, फुट पे ब्लिस्टर आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, पसीना होता है पूरी बॉडी में, ऑब्वियसली ठंड होती है, पर हम जब चढ़ते हैं तो पसीना होता है। तो 5वें दिन वहाँ पे शावर पानी बंद हो जाता है, so you don't take a bath after the 5th days। तो you have to carry wet wipes with full amount and every day you have to fresh your body with the wet wipes। और लास्ट दिन पे तो वॉशरूम में पानी भी नहीं मिलेगा, तो तुमको वेट वाइप यूज करना पड़ेगा। तो भाई एक बात बताओ, जैसे आपने 30 to 40K का बजट बताया था, बट आई थिंक दैट इज जस्ट फॉर द परमिट्स एंड क्या कहते हैं उसको, आना जाना। व्हाट अबाउट द इक्विपमेंट्स? वो मुझे लग रहा है वो अपने आप में ओनली नेपाल टू नेपाल, राइट? वो इंडिया का जर्नी वो सब मैंने इंक्लूड किया नहीं था, वो सब मिला तो 50,000 होगा इंडिया से। और सबसे ज्यादा खर्चा होगा आपको शॉपिंग करने में, डबल। मतलब आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि शूज, वो गियर्स लेने हैं, ट्रैकिंग पोल्स एंड देन 5 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, सॉक्स भी ऐसे लेने हैं, सब कुछ लेना पड़ता है। तो वो 20-30 हजार से वो ज्यादा हो जाता है इसके कंपेयर टू। बेस्ट थिंग, इफ यू वांट टू गो वेरी चीपेस्ट
चेक द फेसबुक मार्केट प्लेस, वहाँ पे लोग बहुत ही बिना यूज किए लोग मतलब बेच देते हैं, ट्रैकिंग शूज, अच्छा, रेन जैकेट, एवरीथिंग। ये एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली। मुझे नहीं पता था कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे सेकंड हैंड सॉन्ग बहुत मिलता है विदाउट यूज, बिकॉज समवन गिफ्टेड और दे डोंट वांट टू यूज, दे कैन सेल इट। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि आपके पास 12 दिन तो जाना था और फिर 4-5 दिन आने के लगा लो, 16-17 दिन का सामान, गिवन ठंड है, कपड़े हैं, तो बैग का वेट कितना हो गया था? भाई यहाँ से निकले तो बैग कैरी नहीं हो रहा था हमारे, मतलब लिटरली कोई बैठ रहा है ना, कोई ऊपर बैठ गया, मतलब वो बड़ी आंटी वाले होते हैं ना भारी सी। तो हमारा पहले से प्लान करके गए थे कि 2 जगह पे सामान छोड़ना है, रिटर्न में हम लेंगे। तो हमने पाखडिंग, नामची के पहले पाखडिंग आता है, तो हमने वहां पे आधा सामान छोड़ दिया था और आधा सामान हमने थोकला पे छोड़ दिया। तो जैसे जैसे यूज होता जाएगा कपड़े और तुम्हारा जो इनरवेयर होता है, तो तुम छोड़ के जा सकते हो। और क्या चार्जेस रहते हैं उसके? चार्जेस नहीं लगता, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि हम रिटर्न में यहाँ रुकेंगे, उसको ऐसा बोलना है, हम रिटर्न में आएंगे तो यहाँ रुकेंगे, ऐसा बोलना है। जस्ट इन केस किसी को दिक्कत हो जाए, तो डू वी हैव द ऑप्शन टू लाइक ऑफलोड द बैग इन द मिडिल ऑफ द ट्रेक? ऑफलोड मतलब कोई और हमारा बैग लेके आ रहा है? नहीं, तुमको पहले से ही पोर्टर करना पड़ेगा, इफ यू नो तुमसे नहीं हो पाएगा, नामची बाजार से या पाकड़िंग से तुमको पोर्टर हायर करना पड़ेगा, एंड यू कैन गिव 1000 रुपीज एवरी डे, मतलब उसका स्टार्टिंग वहां से होता है 1000 रुपीज। बट अगर बीच में जरूरत पड़ जाए फिर कैसे, क्या कुछ है? इट्स अप टू योर पार्टनर, उनको ही करना पड़ेगा। मेरा हुआ था ऐसा कि उसका जब पीरियड्स और वैसा था तो मेरे को थोड़ा कैरी करना पड़ा था, तो विच इज डूएबल। आई मीन इफ यू आर गुड टू गो देन थोड़ा तो एक दिन का हो सकता है, उससे ज्यादा यू हैव टू थिंक बैकअप कि भाई ऐसा सिचुएशन ना आए, पर आ गया तो फिर या तो तुम लोकल के सामान थोड़ा छोड़ दो, उसको हाफ करके, और हाफ जैसे टी हाउसेस वगैरह है वहाँ पे, हाँ उसको रिक्वेस्ट करो, वो अच्छे लोग, जो लोग होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। इज इट अ गुड ऑप्शन कि कोई अकेला बंदा चला जाए या एक पार्टनर हो तो बेटर रहता है? आई मीन सी, इफ यू हैड डन लॉट ऑफ ट्रैक्स देन यू कैन डू इट, इट्स डिपेंड ऑन द व्हाट सीजन। मतलब अक्टूबर में तो करने लायक है, मैंने बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पीपल देखे स्पेन से, वो लोग सोलो आ रहे हैं, बट दे आर गुड ट्रैकर। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है तब भी वो एवरेज पे आए। इट्स डूएबल, इट्स नॉट कि इम्पॉसिबल, पर तुमको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज जैसे यू नेवर नो कि कब तुम्हारे मतलब पैर मुड़ जाए, ये तो बहुत मतलब बेसिक सी चीज है। तो क्रूशियल है ना, लास्ट 5 दिन क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उसमें AMS हिट होता है जैसे ऊपर जाओगे 5000 मीटर के ऊपर, प्लस तुमको खाना वहाँ पे मिनिमल ऑप्शन होते हैं, ऊपर कुछ इतना ऑप्शन नहीं होता, ओनली दाल भात और सूप। शेरपा सूप वहाँ पे बहुत फेमस होता है, मतलब बॉडी को वार्म कर रखने के लिए, तो ऊपर मिनिमल ऑप्शन होते हैं। तो और लास्ट दिन पे कैसा होगा, तुम्हारे पेट में कुछ नहीं जाएगा, लिक्विड ही जाएगा। तो मेरा ऐसा हो रहा था कि लास्ट दिन पे कुछ पेट में खाना ही नहीं जा रहा, हम फोर्सफुली डाल रहे थे, मेरी पार्टनर को वॉमिट हो गया था। तो और डाइमक्स को अगर लेना है तो लो, मतलब डिपेंड्स ऑन योर एक्लेमेटाइजेशन। तो उसने तो डाइमक्स लिया था, पूरा बाहर आ गया था, दवा मतलब मेडिसिन भी अंदर नहीं जा रही थी। तो यू हैव टू बी, मतलब अगर सोलो जा रही हो तो सब कुछ तुम पे डिपेंड होता है और तुम्हारे पे होता है। एग्जैक्टली मान लो कुछ हो गया रास्ते में, तो अगर टी हाउस नहीं है तो कुछ हेल्प तो आने वाली नहीं है, पीछे से वो लोग ट्रैकर ग्रुप आ रहा है तो वो लोग हेल्प कर देंगे, और कॉल द हेलीकॉप्टर, वो 2-3 लाख तुम्हारा ऐसे ही चले जाएगा। बट दैट इज ऑन द लक, पैसे तो जाएंगे, कोई पीछे से आएगा, कब आएगा वो भी है ना। ओके, सो इट्स एडवाइजेबल कि तुम मतलब किसी के साथ ही जाओ तो आई थिंक बेटर। कितनी बार आपको ऐसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत लगता है, कितनी बार आपको ऐसा लगा कि भाई सब खत्म करो, घर चलो, मुझे नहीं करना ये, और जब आपको ऐसा लगा, व्हाट वाज द थिंग व्हिच केप्ट यू मूविंग? मेरे पार्टनर को बहुत हुआ था कि वो हाईवे मूवमेंट है ना, अला बट मेरे को घर जाना है, वो मूवमेंट। तो लाइक उसको बहुत टाइम हुआ, 4 से 5 बार हुआ कि भाई उससे हो नहीं रहा बहुत। हम अब इतने प्रिपरेशन 1 साल से करके आए हैं, वी कांट मूव बैक, राइट। फिर मेरे सपोर्ट से वो आगे बढ़ गई, प्लस उसकी सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ गया। जिस टाइम मेरी सिचुएशन खराब थी, दोनों के सपोर्ट से हम लोग की पुश फॉरवर्ड कि करना है। अकेले होते तो शायद
गिव अप कर देते? शायद नहीं, तुम पीछे ही चले जाती, भाई छोड़ो यार, जिंदा घर के खाने, मम्मी का परोठा चाय परोठा खाना है। क्योंकि तुम मेन खाना यार पक जाओगे तुम दाल भात खा के, कितना खाओगे? 10 दिन 15 दिन, सुबह दाल भात, शाम दाल भात, पूरा वही लोग खाते चिकन मटन, क्योंकि ऊपर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाते वो पूरा फ्रोजन होता है और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। एंड ये भी कहते हैं ना, जितना हो सकता है उतना फाइबर खाओ ताकि तुम्हारा पेट साफ रहे, क्योंकि फाइबर निकल जाता है बहुत आसानी से। व्हाट वाज योर एक्सरसाइज रूटीन और डाइट रूटीन व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, मतलब इन बैंगलोर? मेरा ऐसा था कि मैंने स्टार्टिंग बहुत स्लोली किया था, पहले 3 किलोमीटर दौड़ना, 5 किलोमीटर, धीरे धीरे में फिर मैं बढ़ता गया। तो मैं सुबह में जल्दी उठ के 6 बजे उठ जाता था। सुबह उठना बहुत बड़ा टास्क होता है, 6 बजे डेली। तो मेरा ऐसा था कि मैं प्रॉपर में आई गेट अ स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप लूँ, प्लस मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ टाइम टू टाइम, और उठ के मैं शूज पहन के जब बस दौड़ने पहुंच जाओ। एक बार रन कंप्लीट हो जाए फिर मैं आता था। फिर ऐसा होता था कि 20 फ्लोर चढ़ना है मेरे को, बिल्डिंग, वो भी एक्सरसाइज डेली करना है। 20th फ्लोर चढ़ना है, उतरना है। इसके बाद मेरा कार्डियो स्टार्ट होता था, हाफ एन आवर, एंड देन इंक्रीजली आई डू टू द 1 आवर। कार्डियो इसके बाद शुरू होता है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज में करता था। अच्छा, वो भी मैंडेटरी। पहले मैं नहीं करता था, पर आफ्टर द 1 मंथ मैंने बोला ये मैंडेटरी है, आई हैव टू डू इट। फिर धीरे धीरे उसको इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, और मेरा मेंटेन करना था कि 10 किलोमीटर डेली चलना है, मतलब सर दौड़ना है। 1 किलोमीटर 1 आवर में यू शुड रन 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद मैंने एक्सटेंड किया 15 और 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। आप वहां तक भी पहुंचे? या 20 किलोमीटर इज माय एक्सट्रीम। वाओ, एक इन वन गो चलो और थोड़ा फिर चल के जाओ, दौड़ो, फिर हाँ, मतलब तो ऑब्वियसली, बट नहीं रुकना नहीं। क्रेजी दिस इज हैपन इन द वीकेंड्स, बिकॉज मेरा मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रहता है। तो सुबह में मैं मंडे टू फ्राइडे इतना स्ट्रेच नहीं होता, पर ज्यादा दौड़ना होता है सैटरडे संडे, क्योंकि ऑफ रहता है। उसमें मैं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को आराम मिलता है, पूरा दिन रेस्ट ही करना होता है। देन सबसे बड़ा होता है तुम्हारा डाइट, फूड इनटेक कैसा है, तुम 1 महीने या लास्ट 1 मंथ 1.5 मंथ कैसा डाइट रह रहे हो। मेरा ऐसा था कि आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था, मेरा 7:30 या 8 फिक्स ब्रेकफास्ट होता था। तो मैंने टाइम फिक्स कर दिया था कि 12:30 लंच करना है तो करना है, 12:30 to 1। पर वो अपना मीटिंग रहता है तो थोड़ा थोड़ा एक्सपांड भी हो जाता है। तो मेरा इस सेट किया था कि 12:31 में मेरा खाना मतलब हो जाए लंच, प्लस 7:30 रात को 7:30 to 8 मेरा डिनर हो जाए, और मैं 10 बजे सो जाऊं। और खाने में मैं बहुत फास्ट फूड खाता था, स्विगी जोमेटो में ऐसे ही डिलीवरी कर देता था। सो आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑन दैट ऑर्डर्स। तो मैंने वो ऐप डिलीट ही कर दी, ग्रेजुअली मैं ऑर्डर कम कर दी, डिलीट ही कर दी। एंड आई फुली फोकस ऑन ऑर्गेनिक ग्रीन वेजीज, और जो बीन्स थे, और जो चिकन था इनटेक, फिश था, फिश खाओ, चिकन एग्स डेली खाओ। तो वो तुम्हारा डाइट पे प्रॉपर फोकस होना चाहिए। फिर आई मेक मैंगो बनाना स्मूथी, ब्लूबेरी स्मूथी, और वो सब स्मूथी होती है विथ वाटरमेलन सीड्स और पंपकिन सीड्स और ओट्स और वो सब डाल के। पर मेक श्योर कि तुम्हारा वेट हो, क्योंकि मैंने एवरेज के आने के बाद मेरा वेट लॉस हो गया था 6 to 7 kg समथिंग। बट मेक श्योर यू हैव टेक प्रॉपर फूड, मेक योर डिसिप्लिन टाइम टेबल, उसको फॉलो करना मेन बहुत बड़ी बात है 2 महीने या 1 महीने तक। वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, अगर कोई बंदा अब शुरू कर रहा है, 2-2.5 महीने बाद वो करना चाहता है प्लान, व्हाट आर द टॉप 5 एक्सरसाइज यू विल रिकमेंड टू दैट पर्सन, कि उससे मतलब सब चीजें कवर हो जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ भी चाहिए, कार्डियो भी चाहिए, सब चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज द रनिंग, मैंडेटरी। रनिंग 10K एवरीडे से ज्यादा होता है, मेंटल स्टेबिलिटी को चेक करता है। एवरेज ट्रैक तुम्हारा मेंटल कितना तुम फिट हो वो चेक करता है। सो यू शुड हैव ब्रीथिंग एक्सरसाइज इन एंड आउट, प्लस कार्डियो, और जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज रिलेटेड है वो करो, प्लस पुशअप्स करो डेली, स्क्वाट्स मारो, एंड देन तुम्हारे मेक श्योर योर नीज एंड योर फुट आर वेरी स्ट्रांग, मतलब उसको तुम स्ट्रेच करो। एंड आई थिंक जैसे आपने बोला था कि स्टेयर्स इज आल्सो लाइक मैंडेटरी, इट इज अ वेरी गुड, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से फाकरिंग के नाम से पूरा स्टेयर्स है। मिनिमम मैंने तो पहले 10th फ्लोर से स्टार्ट किया था, देन 15-20 फ्लोर। मेरा ऐसा था कि मैं ऑफिस और अपने अपार्टमेंट में लिफ्ट पहले लेता था, मैंने पूरा लिफ्ट कट आउट कर दी, मैं स्टेयर्स ही लेता था, मैं भी और घर पे भी। वाज इट बॉडी वेट या आपने वजन डाल के भी करा था, या जस्ट बॉडी वेट? इफ पॉसिबल
जस्ट थोड़ा बैग में आप 2-3 डंबल्स डाल दो या कुछ वेट डाल दो और लास्ट 10-15 दिन में आप चेक करो कि आपसे हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो चेक करना सिमुलेटर में जरूरी है। मतलब इट इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू द ट्रैकिंग थिंग। तो आई थिंक सब चीजें हमने कवर कर ली। वन टिप्स कि मेरे को लोग मिले थे जो इंडिया की जो ट्रैकिंग ग्रुप है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, 2-3 बहुत फेमस है, तो वो लोग भी मिले थे। तो उन लोगों ने मेरे को बोला था कि इस कंपनी के साथ मत आओ, ये लोग कुछ सपोर्ट नहीं करते। मैं डालूंगा वीडियो में, आएगा मेरे जो सीरीज है उसमें आएगा। मेक श्योर कि इफ यू चूज द कंपनी ट्रैकिंग ग्रुप, उसका बहुत रिसर्च करके जाओ। मैं तो एडवाइस करूंगा नेपाल से आप चूज करो, क्योंकि वहां से बहुत सस्ता पड़ता है कंपेयर टू इंडिया। हाँ, नेपाल बहुत सस्ता पड़ता है। जैसे ट्रैक द हिमालयाज पे आई थिंक 50 से 60 हजार रुपए का है, तो नेपाल में सस्ता पड़ सकता है ये। सो यहाँ से इंडी हाइक करके ना, इंडिया हाइक करके बहुत फेमस है अपना, तो यहाँ से उनका भी स्टार्टिंग पॉइंट तो लुकला ही होता है। बिल्कुल। पर अगर तुम लोकल कंपनी चूज करते हो तो वो थोड़ा 5-6 हजार कम करेगा, पर वो होता है नेपाली रुपीज में, तो वो भी थोड़ा, वो भी और ही कम हो गया। कूल, सो आई थिंक वी आर गुड। So yeah, that's it. And if you want to guys reach out to me, I'll mention, Prajwal can mention my Insta handle, anything. So you can reach out to me. And if you want to in Bangalore, I can live in the Belandur. You can come anytime. Yeah. तो आज मैं सुबह में ही मेरा रन करके आया, 10K रन। यहाँ पे क्लब है, रनर्स क्लब करके राइड कर। तो आज मैं कंपटीशन में विन हो गया था। तो एक्चुअली मेरे को ये मैं बताया था, गिफ्ट हैम्पर भी मिला है इसकी तरफ से। तो आई कम इन रनर अप, टॉप 3 रनर अप्स। So this is like secret Sampa thing. Crazy. हाँ, ये कौन सा क्लब है? स्ट्राइड रनर क्लब बेंगलुरु का है, स्ट्राइड STRID। स्ट्राइड रनर क्लब। अरे क्रेजी भाई। तो अब आपने 2024 का अपना हार्डेस्ट थिंग कवर कर लिया, EBC। 2025 के लिए भी आपके कोई प्लान्स हैं क्या? Obviously, it's in my wish list. So the plan is like doing cycling from the Manali to reach the Khardungla, one of the highest motorable pass. क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो? I starting also training. I purchased this bicycle from the Decathlon and धीरे धीरे करके मैं कर रहा हूँ। भाई that is going to be crazy. वो रास्ता है भी साइकिल के लायक। बट इट इज डूएबल, या पर उसके लिए बहुत लगता है, तो धीरे धीरे होता है। तो भाइयों, ये था हमारा एक बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव सेशन माहिर जायसवाल के साथ अबाउट एवरेस्ट बेस कैंप। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इनकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, इनके साथ आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप बैंगलोर में तो आप इनसे मीटअप भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप मतलब आपस में बात कर लेना इस बारे में। और माहिर भाई, बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपके अगले साल के चैलेंज के लिए। आप साइकिल से जा रहे हैं खारदुंगला तक। Yeah, thank you so much for this opportunity, and guys, for quick note, just do it. If you want, if you are crazy, just plan and do it. Don't think twice. लीव मिल जाएंगी तुमको जॉब से या कहीं से भी। वो मेन बात है, क्योंकि लीव मिलना 1 महीने के लिए, मैं वही सोच रहा था कि तो मैंने अपने मैनेजर को सारी टीम से बोल के रखा था कि 2 महीने पहले एडवांस अप्लाई करके रखा था कि पीछे मेरे पे सब कुछ ना आ जाए, तो उनको एडवांस में कर दिया था। देन आई गॉट अप्रूवल। मेरा मैनेजर ऐसा अच्छा है, फ्रेंडली। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू प्रज्वल फॉर योर स्वीट इंटरव्यू, and I hope I'll meet you on the social media guys, and that's it. Thank you so much. Have a good day. Thank you, bye.